Well, hello and welcome students again to my channel. This is me, your English teacher Hirsch, and today we are taking the fourth chapter of the book Vistas, that is On the Face of It. This chapter is written by Susan Hill. It's a story of the two characters. One is Mr. Lamb and the other is Derek actually. Mr. Lamb on one side is having an artificial leg. It's made of tin. He is an old man, and the other character, Derry, is a teenager boy of 14 years. He has a burnt face. The story begins when a 14-year-old boy, enters into a garden having his face burnt on one side. Acid fell on half of his face. That was the accident, and after that accident, he was afraid of people. To hide himself, he went there into the garden. He thought that there might be nobody there. But there was someone. Firstly, he wanted to escape from there. He wanted to run away, but stopped by that person. And that person was actually the owner of the garden and the house, Mr. Lamb, the old man about who I told you in the beginning of this story. The boy was completely frightened because he entered into the garden without anybody's permission. But Mr. Lamb assures him that you don't have to worry because of my presence here. I am the owner of the garden and the house, and I don't care if somebody comes inside. I just love being near the people. When the old man asked Derry to stop there, to spend some time there with him, Derry said, I just want to leave because people hate me. I don't want to come near the people because they hate me because of my face. I am afraid of people. I am afraid of being near to people. Mr. Lamb assures him and said, even I also have a tin leg. Kids are making joke of it. I'm not worried about it. I just enjoy my life. I like everything. Everybody is my friend. So, my dear child, be positive. Don't think about your negatives or your minus points. Think about the positivity of the world and be positive like me and be happy in your life. So, after that much talking, both of them, they became friends. So, the old man asked the little boy to help him plucking the crab apples. Crab apples are a type of species in the apples, and these type of apples are considered good for making jelly. So the old man requested Derry to help him in plucking the crab apples and making jelly out of them. The little boy made an excuse, and the excuse was his home is very far from there. He actually hadn't informed his mother. Okay, you can go and take permission. The little boy goes, and after going to his home, his mother was not ready to send him back. She knew the old man. And when the little boy discussed about the old man, she knew him very well. So she was not ready to send him back to that person. So the little boy's mother was not ready to send him back to the old man, but he returned, denying her acceptance because he promised to the old man. Mr. Lamb started on his own to pluck the crab apples because he knew very well that nobody returns after promising. And because Derry won't return, he started on his own to pluck the crab apples. In the process, he falls from his ladder and dies. Finally, Derry returns. When he saw it, he shouted very badly. He shouted, I have come because I promised you. I have come. Here I am to help you in plucking the crab apples, to help you in those talkings. I am fond of you. I like you. But so Lamb, he was lying on the ground. He said, oh no, what have you done? I was about to come because I promised you. He tried to wake him up, but it was all in vain because the old man was died. He weeps badly, very bitterly.
The story ends on a sad note. That's it. The message in this story is actually, you may have many misfortunes, you may have many negatives in your life, you may have many minuses, but you should focus on your plus points, your positives, and what should be positive for you to increase the intensity, to increase the level of your lifestyle. That's it. So this is the end of the chapter On the Face of It, written by Susan Hill. It was a story about the two characters, Mr. Lamb, the old man, and Derek, the little boy. तो बच्चों, आज हमने जो चैप्टर पढ़ा है वो है ऑन द फेस ऑफ इट. सुसैन हिल ने इसे लिखा है और आपको पता ही है विस्टर्स बुक हमारी चल रही है, तो ये चैप्टर विस्टर बुक का चैप्टर नंबर 4 है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस ऑफ द CBSE. 2 कैरेक्टर्स इसमें है मेनली. मिस्टर लैम जो कि एक ओल्ड मैन है, उसकी आर्टिफिशियल लेग है और टिन का बना हुआ उसका पैर है, और एक छोटा लड़का है 14 साल का, एक टीनेजर है जिसका नाम है डेरेक उसका नाम है, लेकिन उसको प्यार से डेरी बुलाते हैं और एक्चुअली डेरी वाला नाम ही उसको ज़्यादा पसंद है. तो इस स्टोरी की जो एक्चुअल बिगिनिंग है वो है एक छोटा लड़का 14 साल का टीनेजर डेरी एंटर करता है एक गार्डन में जो सुनसान है, वहाँ कोई नहीं है, क्योंकि वो लड़का, उसका एक तरफ से फेस जला हुआ है. एक बार उसके साथ एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एसिड गिर गया था उसके फेस पे, तो एक तरफ से उसका बर्न्ड फेस है, जला हुआ चेहरा है. लोगों के पास वो जाना पसंद नहीं करता क्योंकि लोग उसे चिढ़ाते हैं, टीज करते हैं, नफरत करते हैं लोग उससे, उसके चेहरे को देखना नहीं चाहते, ऐसा उसको लगता है बच्चे को. इसलिए वो अपने आप को छुपाना चाहता है, हाइड करना चाहता है दुनिया से, और वो चला जाता है उस सुनसान गार्डन में क्योंकि उसको लगता है कि वहाँ कोई नहीं है. जबकि वो एकदम से डर जाता है जब उसको पता चलता है कि वहाँ कोई है पहले से ही और वो उसको आवाज़ लगा रहा है. वो एक्चुअल में लड़का भागना चाहता है फर्स्ट अटेम्प्ट में तो, लेकिन जब वो आदमी आके खड़ा ही हो जाता है तब वो रुक जाता है. वो आदमी था उस गार्डन का और उस घर का ऑनर मिस्टर लैम, जो कि बूढ़ा आदमी है और वहाँ ही इज़ लिविंग बाय हिमसेल्फ ऑल अलोन, अकेला रह रहा है. लड़का डरा हुआ इसलिए भी है क्योंकि उसने परमिशन नहीं ली थी किसी के अंदर आने के लिए. तो मिस्टर लैम जो ओल्ड मैन था वो कहता है कि मेरे बच्चे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं यहाँ हूँ, मैं आ गया हूँ, इसलिए तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. मेरी तरफ से यहाँ कोई आए कोई जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि द गेट्स आर ऑलवेज ओपन. मेरे घर के कर्टेंस भी लगे हुए नहीं हैं चारों तरफ से, खिड़की दरवाज़ों के, तो मैं चाहता हूँ कि लोग आए और जाएँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. आई लाइक पीपल कमिंग इनसाइड माई होम इन माई गार्डन. डेरी कहता है कि मुझे जाना है. क्यों? क्योंकि लोग मुझसे नफ़रत करते हैं, लोग मेरे चेहरे को देखना नहीं चाहते और मुझे भी लोगों से डर लगता है. क्योंकि अगर मैं लोगों को फेस करूँगा तो वो दे विल टॉक अबाउट माई फेस, माई बर्न्ड फेस, और मुझे बुरा लगेगा. इसलिए तो मिस्टर लैम्ब उसको समझाते हैं कि मेरे बच्चे, ऐसी बात नहीं है, कमियां किस में नहीं होती. मेरे खुद के भी जो पैर है वो टिन का बना हुआ है, यानी टूटा हुआ है किसी एक्सीडेंट में, या यूँ कह लीजिए जैसे चैप्टर में बताया गया है, युद्ध में लड़ाई करने में. बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, वो मुझे लैम्बी लैम्ब कहते हैं, लेकिन आई डोंट केयर अबाउट दैट. आई एन्जॉय माई लाइफ, आई लाइक एवरीथिंग, आई लाइक एवरीबडी कमिंग इनसाइड माई गार्डन. एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज़ माई फ्रेंड. आई हेट नोबडी. सब पसंद है मुझे, किसी से मैं नफरत नहीं करता. तो तुम भी एक चीज़ का ध्यान रखो कि बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ध्यान दो. क्या तुम्हें बुरा लगता है और कौन तुम्हारे बारे में बुरा कहता है, डोंट केयर अबाउट दैट. तो इस तरह से अच्छी अच्छी बातें करने के बाद में वो दोनों दोस्त बन जाते हैं. और मिस्टर डेरी, क्योंकि उसकी गार्डन में एप्पल्स लगे होते हैं, क्रैब एप्पल्स एक तरह के एप्पल्स होते हैं जो यूजुअली खाने में गम और जेली बना के यूज़ करने में ज़्यादा काम में लेते हैं लोग, ज़्यादा यूज़ करते हैं. तो वो उसे रिक्वेस्ट करता है छोटे बच्चे को कि इन एप्पल्स को तोड़ने में तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि यू हैव बिकम माई फ्रेंड नाउ. तो वो कहते हैं नहीं, फ़िलहाल तो नहीं. क्यों? क्योंकि यहाँ से मेरा घर बहुत दूर है और मैंने घर पे किसी को बताया भी नहीं, इनफैक्ट मैंने मॉम को भी नहीं बताया. तो बूढ़ा आदमी कहता है कि तुम जा सकते हो ऑब्वियसली, और यू कैन इन्फॉर्म योर मदर एंड यू कैन कम बैक. तो उसको पता था घर जाने के बाद में वापस मुझे मेरी मॉम आने नहीं देगी, और हुआ भी ऐसा ही. जब वो घर पहुंच गया तो उसकी माँ ने उसको वापस आने के लिए परमिशन ही नहीं दी. जब उसने बताया कि मैं उस आदमी के पास जाना चाहता हूँ, तो क्योंकि उसकी माँ उस बूढ़े आदमी को पहले से ही जानती थी, तो उसने कहा कि
कोई मतलब नहीं है उसके पास जाने से। अगर तुम्हें बातें ही करनी है, डिस्कशन ही करना है चीज़ों के बारे में, दुनियादारी के बारे में, तो तुम यहीं बैठ के अपनी थिंकिंग कर लो, उसके पास जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। आई एम नॉट गिविंग यू परमिशन टू गो आउट ऑफ द हाउस। लेकिन क्योंकि डैडी ने मिस्टर लैम को प्रॉमिस किया था कि मैं वापस आऊँगा, जब मिस्टर लैम ने कहा था कि सब चले जाते हैं कोई वापस नहीं आता, जो प्रॉमिस करके जाते हैं आज तक तो कोई वापस आया नहीं, और तुम भी नहीं आओगे ऑब्वियसली, तो वो कहता है कि नहीं, आई प्रॉमिस यू, आई विल कम बैक, आई विल डेफिनेटली रिटर्न, आई एम अ ब्रेव बॉय ऑफ कोर्स। तो मम्मी के मना करने के बावजूद भी, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था, तो वो वापस आता है भागा भागा। अब मिस्टर लैम को ये लगता है कि डैडी तो वापस आएगा नहीं क्योंकि कोई नहीं आता, तो वो अपने खुद के बलबूते पर ही एप्पल्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। एक लैडर लेते हैं, एक सीढ़ी लेते हैं, उस पर चढ़ते हैं और एप्पल्स प्लग करना, तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और इसी प्रोसेस में वो जो है गिर जाते हैं नीचे, और नीचे गिर के मर जाते हैं। डैडी वापस आता है, जोर से चिल्लाता है, मिस्टर लैम, वेयर आर यू? आई हैव कम बिकॉज आई प्रॉमिस्ड यू एंड आई हैव फुलफिल्ड माई प्रॉमिस। लेकिन होता क्या है, जब वो देखता है कि मिस्टर लैम, द ओल्ड मैन, द ओनर ऑफ द हाउस एंड द गार्डन, वाज लाइंग डेड ऑन द ग्राउंड, ज़मीन पे गिरा हुआ है, मर चुका है, तो वो जोर से चिल्लाता है, उसको जगाने की कोशिश करता है, लेकिन ही इज़ कम्प्लीटली डेड। तो उसको बहुत अफसोस होता है, वो बहुत बुरी तरह से रोता है। एक ही तो इंसान था जिससे वो बात कर सकता था अच्छी तरह से, दुनिया में कोई उससे बात नहीं करता था, क्योंकि उसके चेहरे पर जलने का निशान था। हिज फेस वॉज बर्न्ड इन एन एक्सीडेंट, नोबडी टॉक्ड हिम, ही लाइक्ड नोबडी इन द वर्ल्ड। एक आदमी मिला था जिससे उसकी दोस्ती हुई थी, और शायद वो उसी की तरह का था, और उसके साथ वो अच्छी तरह से खुशी खुशी रह सकता था, जिसके साथ बात करना, जिसके साथ रहना, समय बिताना उसको अच्छा लगता था, और वही दुनिया से चला गया। सो इट्स अ वेरी सैड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो ये थी कहानी, ऑन द फेस ऑफ इट बड़ी अच्छी कहानी, एक छोटे बच्चे की और एक बूढ़े आदमी की इमोशनल रिलेशन के बारे में ये थी। उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। द नेक्स्ट वीडियो with a fresh chapter, we will meet again. Thank you so much for watching. Take care of yourself. Thanks for watching. Thank you.